and Dean Dr. Rakesh Gupta sir and Dr. Praveen ma'am. Of our great country, Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is an initiative of Government of India to celebrate 75 glorious years of our independence, and it started on 12th March 2021 and will culminate on 15th August 2023. On this glorious occasion, I, Dr. Parveen Akhtar Loon, on behalf of entire staff of Indira Gandhi Government Dental College, Jammu, feel privileged to welcome our first esteemed guest speaker, Professor Ashok Aima Sir, Vice Chancellor, Central University, Jammu. It gives me immense pleasure. This event more special. 47. It's a period of it's the wish of a Prime Minister to make our country wish-proof during this Amrit Kaal. His wish is to make India With great regards, I will show the path to the entire world. That is the vision of our Honorable Prime Minister. In the Mann Ki Baat in 30th of July 2023, our Honorable Prime Minister has mooted the idea to have the campaign Meri Mati Mera Desh from 9th of August to 30th August, and also Har Ghar Tiranga Abhiyan from 13th to 15th of August. So these two ideas were mooted by our Honorable Prime Minister. In Har Ghar Meri Mati Mera Desh, he has invoked that in all the state level, block level, village level, and the urban bodies, these programs will be conducted. This is what his vision was. Campaign will feature programs like the establishment of memorial plots of the freedom fighters in the panchayats, in the block level, in the district level, and also to take the Panch Pran Pledge and forming the Vasudha Bandhan and Veeron Ka Bandhan, and also taking the 7,500 Kalsh of the soil from the different part of the country and to make it and carry this sand in the President's house and make it as an Amrit Vatika. And this Amrit Vatika will open from tomorrow onward. The President of India will inaugurate the Amrit Vatika also. The most Shri, and you must have parameters. This is what two great parts and independent and how we. That's why, my friends, today is what we are. That's what drew me on to this. Meri Mati Mera. The Jawans were sacrificed. Let me tell you that my cousin, Major Sushil Aima, had just married. It was his first marriage celebration and first birthday of his daughter when he was serving in Bhadarwah. Suddenly a call came in that there were the militants there. He was not to go because he had already proceeded on leave. So he offered and volunteered that he is not there, that therefore I'll go for him. And he never came back. So that's how I think we contribute our bit to the nation's security and peace. But I would say that, again I go, that power of a nation is measured by the power of the people.
there is no other way in which you can probably see that the nation can be where it needs to be. Let's understand there is nothing like that the government directed it. Nation has to be the people directed. समाज और संस्कृति का उत्थान मनुष्य की चेतना में है. जहाँ मनुष्य की चेतना जड़ हो जाए वहीं वो समाज और संस्कृति का विनाश का कारण बनती है. ह्यूमन कॉन्शियसनेस हैज टू बी देयर. और वो एक सिर्फ एक जागरूक, that's why in the Central University of Jammu you will find Gyan Buddhi Shuddhiti. Knowledge refines your wisdom. But you have to seek the knowledge. Unless you are not aware about yourself, that is a kind of a fallacy with which you live. वैसे भी आज देश में पार्टीशन की त्रासदी का दिन मनाया जा रहा है. ये एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जिसमें करोड़ों लोग बेघर हुए, लाखों लोग मारे गए, हजारों महिलाओं की इज्जत लूटी थी, लाखों बच्चे अनाथ हुए. बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी इस आज़ादी के लिए. ये आज़ादी कोई ऐसे ही नहीं मिली. बहुत संघर्ष करना पड़ा देश को. हेमा जी ने बहुत अच्छी तरह से आज के भारत की चित्र आपके सामने खींचा. 5वें नंबर पर और जल्द ही 3रे नंबर तक पहुंचने वाला है, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं. स्पेस में देखिए आज हम अमेरिका, चीन और रूस उनका मुकाबला कर रहे हैं. चंद्रयान 3 मून पे लैंड करने वाला है कुछ ही दिनों में. हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ने दुनिया को दिखाया कोविड के वक्त कि किसी से हम कम नहीं हैं, जबकि बाहर के देश बहुत अपना प्रेशर डाल रहे थे कि फाइजर की वैक्सीन खरीदो. लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपनी वैक्सीन बनाकर केवल अपने लिए नहीं दुनिया भर के लिए दी, मुफ्त बांटी. ये नए भारत की ताकत है. आज हमें देश अपना रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होता हुआ दिख रहा है. आईटी सेक्टर में तो है ही, डोमिनेंट है. अमेरिका में जैसे हेमा जी ने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ में आधे लोग भारतीय मूल के हैं. वहाँ के हेल्थ सिस्टम ब्रिटेन का और अमेरिका का चलाने वाले भारतीय हैं या चाइनीज़ हैं. उनके प्रेसिडेंट को एक बार मैंने पढ़ा था कि उसने अपने अमेरिकन यंगस्टर्स को कहा कि आप सो रहे हो, ये भारतीय और चाइनीज़ आपको टेक ओवर कर लेंगे. कोशिश की और लूटने की कोशिश भी कैसे की कि महीनों हमारी लाइब्रेरियां चलती रही, वो विश्वविद्यालय चलते रहे. तो उन्होंने इस तरीके से लूटा. और कुछ लोग यहाँ की धन संपदा को लूटने के लिए आए. तो जैसे कहा गया कि वो हुण भी थे, कुषाण भी थे, शक भी थे, और वो अरब भी थे, तुर्क भी थे और मुगल भी थे. और लगातार ये इस तरीके के लोग भारत के अंदर आते रहे और किसी ना किसी रूप से भारत की इस संपन्नता को लूटते रहे. और मानता ये है कि भारत निरक्षर है, भारत सपेरों का देश है, भारत में कुछ भी नहीं है. भारत को एक क्रॉस लेकर आएंगे और यहाँ सब लोगों को शुद्ध करेंगे और लोग जो हैं अपने आप हम लोगों की तरह विकसित हो जाएंगे. परंतु वही अपनी किताब उस लाइव डायरी में दिखता है कि जिस जहाज को मैं फॉलो कर रहा था वो जहाज पानी का जहाज 3 मंजिला था और मेरा जहाज सिंगल मंजिला था. मगर वो भारत को शिक्षित करने आ रहा था बाइबल लेकर. इसका जहाज भारत के अंदर बना 3 मंजिला. फिर आगे जाके लिखता है वो कि भारत की विश्व के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है अगर उसे देखा जाए निर्यात एक्सपोर्ट, तो 2/3 दुनिया का जो एक्सपोर्ट है वो भारत करता है. तो आप समझ सकते हैं कि भारत के पास देने के लिए क्या कुछ था. परंतु जब इतिहास आपने पढ़ा, इतिहास जब मैंने पढ़ा, तो
तो हमेशा भारत को आपने इस तरीके से पढ़ा कि आपके मन के अंदर आत्मविश्वास खो जाए, आत्मग्लानि कहीं मन में उत्पन्न हो जाए, कहीं पर भी आपको अपने ऊपर गर्व, आपको स्वाभिमान का भाव ना हो, क्योंकि ये डेलिब्रेटली किया गया उन तथाकथित बुद्धिजीवियों के, जिन्हें हम अपना भाई और बहन कहते हैं, इस देश के अंदर ही जन्मे, परंतु उन्होंने भारत का एक भी गुणगान नहीं किया, भारत का सत्य नहीं लिखा तो वो चेहरा लिखा कि आप हमेशा अपने आप को दरिद्र समझें, आत्मग्लानि में रहें, आत्मविश्वास का कोई भाव उत्पन्न ही तुम्हारे अंदर ना हो। और आप सबको मालूम है कि वो देश, वो समाज उसी दिन खत्म हो जाते हैं, वो व्यक्ति उसी दिन खत्म हो जाता है जब उसे अपने ऊपर अभिमान ना हो, उसे अपने ऊपर स्वाभिमान ना हो, उसे अपनी माँ के ऊपर घमंड ना हो, ताकि आपको कभी भी अपने ऊपर स्वाभिमान, ये होता रहा। ये जो आज का यहाँ पे इन्होंने समारोह किया हुआ है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश गुप्ता के एक जो मैसेज आ रहा है कि भाई भारत का जो निर्माण है, इसका पुनर्निर्माण है, ये लोगों की शक्ति से, लोगों के योगदान से होगा। इसमें जो आज जैसे भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में जा रहा है, उसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम सब लोगों से बैठ के करें कि हम कैसे कर पाएँ, क्योंकि यहाँ कोई डिवाइन इंटरवेंशन तो है नहीं, ये तो होना है तो हमारे हाथों से ही होना है। तो आज का जो सेमिनार रहा है, इसमें जो मैंने कहा है कि जो मेन आया कि हमको मेरा माटी मेरा देश, मेरा माटी मीन्स दैट वी हैव टू टेक द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्स। जब तक हम इसको नहीं कहें ये मेरा है और फिर उसी भावना के साथ इसमें सहयोग करें, तब तक शायद चीज़ें उतनी तेज़ नहीं चल पाएंगी। और मेरा देश तभी बनेगा जब आप इसकी मिट्टी को अपना मान के इसकी ओनरशिप ले, इसमें एक स्टेक होल्डर बने, नहीं जी इसका भागीदार मैं बनूंगा। तब मुझे लगता है जैसे आने वाले वक्त में, आने वाले समय में भारत सच में वही विश्व गुरु बनेगा जो पहले था। आज हम डेंटल कॉलेज में यहाँ मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम को मनाने के लिए यहाँ आए थे और कॉलेज के सभी स्टाफ, सभी स्टूडेंट्स उपस्थित थे। उनके साथ देश के लिए प्रेम जगाने का जो ये एक कार्यक्रम था वो संपन्न हो रहा है। इसका उद्देश्य अपने देशवासियों के मन के अंदर हम अपने देश के लिए प्रेम, अपनी माटी जो है अपने देश की, उसका वंदन और अपने वीरों का स्मरण, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश में आज़ादी दिलाने के लिए, आज़ादी की रक्षा के लिए। फिर उन महापुरुषों का स्मरण जिन्होंने देश के अंदर जागृति लाई, उन सब का स्मरण आज किया गया इस कार्यक्रम के अंदर और भारत माँ को प्रणाम किया गया। आज उनका जो कार्यक्रम डेंटल कॉलेज में करवाया जा रहा है वो आज़ादी के सेलिब्रेशन के 77 ईयर के परिप्रेक्ष्य में करवाया जा रहा है। अभी हमने 2 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर के स्लोगन मेरा माटी मेरा देश के तहत वीरों को नमन करवाया था, जिसमें हमने ऑनररी कैप्टन मना सिंह जो परमवीर चक्र अवार्डी थे और अपने ब्रिगेडियर हरचरण सिंह विशेष सेवा मेडल उनको भी सम्मानित किया। रविंद्र राणा जी ने उनको, जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उन्होंने उनको सम्मानित किया था। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है इसमें हम फ्रॉम आज़ादी के अमृत महोत्सव से हम अमृत काल में कैसे प्रवेश करें और हमारी सबकी कंट्रीब्यूशन, हमारी कैसे हर एक आदमी, हर एक जो सिटीजन हैं कैसे वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ, इसी परिप्रेक्ष्य में हमने 3 लेक्चर्स रखे हैं, जिसमें प्रोफेसर अशोक अहमद जी,
जो कि एक्स वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के हैं, की नोट स्पीकर हैं। उसके अलावा डॉक्टर गौतम मैंगी जो हमारे फाउंडर प्रिंसिपल भी हैं और बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं, वो भी हम सबको मार्ग प्रदर्शक करेंगे। इसके अलावा हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वीरेंद्र कौंडल जो कि स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के एक माहिर हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे कि भारत की आज़ादी हमने कैसे रही और हम कैसे फ्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव से अमृत काल में प्रवेश करें और कैसे कंट्रीब्यूट करें और हम इंडिया को कैसे नंबर 1 प्लेस पे ले जाएं, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है, इंडिया को विश्व गुरु बनाने का बाय 2047। तो उसी प्रतिपक्ष में हमने आज ये सारे कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए हैं। इसके लिए मैं आपका और सारा मीडिया का तहे दिल के साथ धन्यवाद करता हूँ, ताकि हम जो ये सोच लाएं, हम सब जो कंट्रीब्यूट कर पाएँ भारत को एक विश्व गुरु बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ग्रेटफुल।